নমস্কার। আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী, বাংলার গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ আমরা 159তম বছর পালন করছি। ভারতবর্ষ এবং পুরো বিশ্বের বাঙালিরা আজকের দিনটা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নৃত্যনাটিকা খুব উৎসাহের সঙ্গে নানা জায়গায় স্কুল, কলেজ, সার্বজনিক সংগঠন এবং ক্লাবে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এটার পালন করেন। তবে আজ করোনা সংক্রমণের জন্য আমরা লকডাউনে ঘরে আছি। আমার মা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং আবৃত্তি করতেন। ছোটবেলা থেকে ওনাকে নানা জায়গায়, নানা মঞ্চে এবং ঘরেও শুনে এসেছি। তাই আমার খুব ইচ্ছে ছিল কি ওনার থেকে আমিও কিছু একটু শিখতে পারি। মা আজ আমাদের মাঝে নেই, তবে হৃদ মাজারে সর্বদাই থাকবেন। তাই ওনাকে স্মরণ করে এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আজ আমি আপনাদের সামনে কবিগুরুর রচিত একটি ছোট্ট কবিতা বীর পুরুষ আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বীর পুরুষ। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে। আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টকবগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ে রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে, এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে। ধুধু করে যেদিক পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই। তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছ, ভাবছ এলেম কোথা। আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা। চোর কাটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে। গরু বাছুর নেই কোনোখানে, সন্ধে হতেই গেছে গায়ের পানে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। তুমি যেন বললে আমায় ডেকে, দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো। এমন সময় হারে রে 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 রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে। তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে। বেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরো থরো। আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে, আমি আছি, ভয় কেন মা করো। হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোজা জবার ফুল। আমি বলি দাঁড়া খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর। এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের সেরে। শুনে তারা লম্ফ দিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে উঠল হারে রে 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 রে। তুমি বললে যাসনে খোকা ওরে, আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে। কি ভয়ানক লড়াই হলো মাঝে, শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়ল কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে চুমু খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে। বলছো ভাগ্য খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশাই হতো তা না হলে। রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এখন কেন সত্যি হয় না আহা। ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে সবাই বলতো শুনে, ভাগ্য খোকা ছিল মায়ের কাছে। ধন্যবাদ।
नमस्कार। आज रविंद्र जयंती है। आज के दिन हम कवि गुरु रविंद्रनाथ जयंती की सालगिरह मनाते हैं और इस साल हम उनकी 159 सालगिरह मना रहे हैं और इस दिन को बंगाली लोग पोचिशे बोईशाख भी बोलते हैं। उस दिन उनका जन्म हुआ था बंगाल के बैसाख महीने में और भारतवर्ष एवं विश्व के सारे बंगाली उस दिन रविंद्रनाथ को याद करके उनके स्मरण में उनके द्वारा रचित जो रविंद्र संगीत है, कविताएं हैं, गीत है, नृत्य नाटिका है, वो सब अनुष्ठान को कार्यक्रम और अनुष्ठान के द्वारा सार्वजनिक रूप में स्कूल कॉलेज में, संगठनों में और क्लब्स में उसका पालन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उनको याद करते हैं। और मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छा रविंद्र संगीत गाती थी और आवृत्ति यानी कविता पाठ जिसको हम बंगाली में बोलते हैं आवृत्ति वो करती थी। तो उस समय से ही मेरे मन में था कि उनसे कुछ सीखूं और खासकर जब वो ये वाली कविता बोलती थी, उन्हें बहुत सारी कविताएं कंठस्थ याद थी और आज माँ नहीं है हमारे बीच में, पर वो हमारे हृदय में हमेशा रहेंगी। और उनसे प्रेरित होकर मैं जब ये कविता सुनती थी बचपन में तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इसको कभी ना कभी सीखूं और बोलूं। तो आज मैंने आपके सामने ये आवृत्ति किया, कविता पाठ किया। मैं हिंदी में इसके अर्थ आपको समझा दूं कि जैसा कि इसका शीर्षक है वीर पुरुष, मतलब एक छोटा सा बालक है, वो किस तरह से वीर पुरुष के नाम में अपने गांव में जाना जाता है। वो अपने माँ को लेके एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है और माँ जो है वो पालकी में बैठी हुई है, पालकी वाले कहार जो है उनको लेके जा रहे हैं क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे। और वो बेटा जो है जिसका नाम खोका है, बंगाल में हर एक छोटे बच्चे लड़के का नाम खोका होता है, निक नेम होता है, तो वो साथ में घोड़े पे सवार है। वो घोड़े पे माँ के साथ साथ चल रहा है, माँ के पालकी के साथ साथ। और जब वो लोग जा रहे हैं तो कुछ देर बाद संध्या हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और एकदम वातावरण शांत और भयावह हो जाता है। तो उसकी माँ सोचती है कि अरे हम कहाँ आ गए हैं, वो डर जाती है। परंतु जो ये बालक है, खोका है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं चिंता मत करो, वहां दूर में हमको एक नदी का किनारा दिखाई दे रहा है। और जब चारों तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, जो गाय हैं, जो और जानवर दोपहर को चरने के लिए निकलते, वो सब अपने घर पे चले गए हैं, गांव वापस चले गए हैं और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तो दूर में उनको एक तरह से प्रकाश दिखाई देता है एक नदी के छोर से। तो उसी समय अचानक एक हुंकार उनको सुनाई पड़ती है, हारे रे 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 रे। तो ये जो हुंकार है, जिस तरह से मेरी माँ इस कविता का पाठ करती थी, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे को इस चीज ने बहुत आकर्षित किया था कि माँ कितना सुंदर तरह से कविता बोलती हैं। और जब इस कविता में हम आते हैं फिर से कि जब ये हुंकार, ये बालक और उसकी माँ और ये कहार जो है पालकी वाले सुनते हैं तो सब के सब डर जाते हैं, खासकर माँ जो है वो बहुत डर जाती है। पर बेटा जो है उनको साहस दिलाता है और बोलता है आप चुपचाप पालकी में बैठे रहो। तो माँ अपने ईश्वर को स्मरण करती है और बोलती है हम लोग सबकी रक्षा करो। और जो कहार है पालकी वाले, वो बेचारे डर के मारे एक जगह कोने में छुप जाते हैं, कांपते रहते हैं। और उसी समय वो बेटा जो है वो माँ को बोलता है आप धीरज धरो, आप चुप रहो। और फिर वो जाता है और उन डाकुओं को ललकारता है जो लोग वहां पर उस समय आ गए थे, जिनका यहाँ पर वो वर्णना दी गई है कि उनके लंबे लंबे बाल है और माथे में ऐसे फूल लगाए। पर उन सबके सामने भी ये जो छोटा सा बालक है, खोका है, वो बोलता है कि देखो तुम लोग मेरी तलवार और तुम लोग अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और इसकी इस बात को सुन के वो लोग फिर से उसको ललकारते हैं और फिर से चिल्ला उठते हैं और बोलते हैं हारे रे 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 रे। तो ऐसा सब सुन के मेरी माँ बोलती है कि बेटा तुम वहां मत जाओ, उनसे मत लड़ो। पर मैं माँ को सांत्वना देता हूँ कि आप बिल्कुल शांत रहो, चुप रहो। फिर मैं लड़ाई करने चला जाता हूँ और जब लड़ाई की आवाजें आती हैं और उसके बाद फिर मैं जब वहां से लौटता हूँ तो मेरे शरीर में पसीने के साथ साथ खून भी दिखाई पड़ता है। पर मैं जब आके माँ को बोलता हूँ कि अब लड़ाई थम गई है माँ और वो डाकू भाग गए हैं, तो माँ जो है वो बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत पालकी से निकल कर आती हैं और आके अपने बेटे खोका के गले लग जाती है, उसको चूमती है और फिर बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो बोलती है कि जब
ये हम अपने गांव वापस जाएंगे तो सारे लोग जो हैं इस कविता को एक कहानी के रूप में सुनेंगे कि किस तरह से एक छोटे से बालक ने, एक बच्चे ने, खोका ने कितने साहसपूर्वक डाकुओं को से लड़ाई की, अपने माँ को, अपने को और पालकी वालों को उनके हाथ से बचाया। और इस कहानी को सब लोग जब सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और जब उसका बड़ा भैया, जिसको बंगाली में दादा बोला जाता है, तो वो तो उसका शायद मजाक भी बनाए, बोले अरे खोका क्या इतना ताकतवर था कि उसने डाकुओं से लड़ाई की। पर जब सारे लोग सुनेंगे गांव के तो वो सारे बोलेंगे जैसे कि माँ ने बोला था कि काश आज खोका मेरे साथ था, नहीं तो मेरे और सभी लोगों की क्या दुर्दशा नहीं होती। तो इसी कारण से इस कविता का शीर्षक है वीर पुरुष यानी साहसी पुरुष। धन्यवाद।